اکیلے علی اکبر نے 1400 یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا تھا. 1400 یزیدیوں کو علی اکبر نے مارا تھا حضرات. مگر ایک ساتھ میں جب ایک ہی بار میں 1000 کے لشکر جرار نے حملہ کیا تو پھر وہ شیر کہاں تک لڑتا, کہاں تک تابلاتا. 3 دن سے پیاسا ہے, 3 دن سے پانی نہیں پیا. کسی نے تیر چلائے, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تلوار چلائی. حتیٰ کہ نبی کے خاندان کے اس چشم و چراغ اور نبی کے باغیچے کے اس مہکتے ہوئے پھول کو یزیدیوں نے خون میں لہو لوہان کر دیا, لہو سے نہلا دیا ہے, زخموں سے چور چور کر دیا ہے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لے آتے ہیں اور اپنے والد محترم کو بلاتے ہیں, آواز دیتے ہیں, ابا جان ہماری خبر لیجئے, ابا جان ہماری خبر لیجئے. حضرات علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین اپنے خیمے کے قریب لائے. کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کے حلق کے اندر ایک تیر لگا ہوا ہے, گلے کے اندر ایک تیر لگا ہوا ہے. حضرات کتنا نرم و نازک گلا ہوگا نبی کے نواسے کے شہزادے کا. امام حسین نے جب وہ منظر دیکھا, اور علی اکبر بھی وہ علی اکبر ہیں جن کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی شان یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا, ایسا جلوہ عطا فرمایا تھا, ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ جب نبی کے وصال فرمانے کے بعد میں لوگ یہ پوچھتے کہ بتاؤ تو صحیح, ہمیں نبی کا دیدار کرنا ہے, ہمیں نبی کو دیکھنا, ہم کیا کریں؟ تو زمانے والے کہتے تھے کہ اگر تمہیں نبی کا جلوہ دیکھنا ہے تو حسین کے بیٹے علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لو, نبی کا جلوہ نظر آ جائے گا, نبی کا حسن یاد آ جائے گا, نبی کی یاد تازہ ہو جائے گی. حضرات ایسا مبارک چہرہ حضرت علی اکبر کا ہے, مگر حلق کے اندر تیر پیوست ہو گیا, حلق کے اندر زخم ہو گیا. میرے امام نے جب اس تیر کو کھینچا, جب اس تیر کو باہر نکالا تو حلق کے اندر سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا, خون کا چشمہ جاری ہو گیا. حضرات امام طبری نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ امام حسین نے اس وقت میں فرمایا تھا, اگر میرے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتے تو میں ان سے کہتا, اے ابراہیم تم نے تو اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے آنکھوں سے پٹی باندھ لی تھی, مگر نبی کا بیٹا اپنے بیٹے کو نہ کھلی آنکھوں سے ذبح کر رہا ہے, اس کے گلے سے خون بہتا ہوا کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. ارے یہ کسی اور کی شان نہیں, یہ نبی کے نواسے امام حسین کی شان ہے. حضرات ایسی شانوں سے ان جانثاروں نے, ان 72 جانثاروں قدسیہ نے ایک کے بعد میں ایک اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے نبی کے نام کے خاطر, نبی کے دین کے خاطر. ہوا یہ, مختلف روایتیں ہیں کہ حضرت زینب نے امام حسین کی بارگاہ میں عرض کیا, بھائی جان دیکھیے علی اصغر ہے, یہ پیاس سے رو رہے ہیں, ان کا حلق سوکھ چکا ہے, ہونٹوں کے اوپر پپڑی آ گئی. بھائی جان میں آپ سے گزارش کرتی ہوں, آپ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہوں, آپ سے کچھ مانگ رہی ہوں کہ علی اصغر کے لیے تھوڑا سا پانی لے آئیے, اس کی پیاس مجھ سے نہیں دیکھی جاتی, اس کی خشک ہونٹ مجھ سے نہیں دیکھے جاتے. اللہ اکبر. امام حسین نے فرمایا, زینب کس سے مانگ رہی ہو؟ جن کے نانا کی شان منع کرنا نہیں ہے, جن کے یہاں پر لا کا لفظ ہی نہیں آتا. زینب کاش مدینہ میں مانگی ہوتی, کاش مکہ میں مانگی ہوتی. ہم کو تو منع کرنا بھی نہیں آتا, منع کرنا بھی نہیں آتا, مگر کیسے ان ظالم صفاق و شفاق سے میں سوال کروں گا, ہمیں تو سوال کرنا بھی نہیں آتا. حضرت زینب کے بار بار اصرار کرنے کے بعد میں حضرت امام حسین نے حضرت ننھے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بازو اپنی گود میں اٹھایا اور جا کر کے کوفیوں سے, یزیدیوں سے مخاطب ہوئے, یزیدیوں تمہاری دشمنی مجھ سے ہے, تمہارا انتقام مجھ سے ہے, تمہیں بیعت چاہیے تو میری, تمہیں ہاتھ چاہیے تو میرا. میرے اس بچے کا کوئی قصور نہیں, میرے اس بچے سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں. میرے بچے کے, میرے اس ننھے شہزادے کے لبوں پر خشکی آ گئی ہے, ہونٹ سوکھ چکے ہیں, حلق سوکھ چکا ہے. اے یزیدیو تم نے میرے بھائی کو قتل کر دیا, تم نے میرے شہزادے کو قتل کر دیا, مگر پھر بھی اگر تم اس بچے کے پیاس کے خاطر پانی دے دیتے ہو
तो नबी की बारगाह से जामे कोसर का मुजदा मैं सुनवाऊंगा। कयामत के दिन इसका बेहतरीन बदला दुनिया और आखिरत में मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। मगर हज़रात उनके दिलों पर मोहर लग चुकी थी, उनके दिलों पर कोई बात असर न कर रही थी। हज़रात इमाम हुसैन की तकरीर चल रही थी कि एक नाहंजार मक्कार जिसका नाम हुरबला बिन काहिर आता है, उस जालिम ने ऐसा तीर चलाया कि वो तीर आते आते नबी के नवासे के शहजादे के हल्के मुबारक पर आकर के लग गया और आपके हल्क को चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में बेवस्त हो गया। इमाम हुसैन ने जब ये मंजर देखा, जब आपने ये मंजर देखा तो तड़प कर रह गए। आप खैमे के करीब पहुंचे और आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी ज़ैनब, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, देखो। हजरत ज़ैनब ने अर्ज़ किया, भाईजान पानी मिल गया क्या? नन्हे अली असगर रोने की आवाज नहीं आ रही, नन्हे अली असगर रोकर खामोश हो गए हैं क्या? पानी पीकर सैराब होकर खामोश हो गए हैं? हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, अब ये हमेशा के लिए खामोश हो गए हैं, अब इनकी प्यास हमेशा के लिए बुझ गई है। हज़रात प्यास क्या बुझी थी? जामे शहादत नोश फरमा लिया था। किसी शायर ने कहा था, खुलती थी बंद होती थी असगर की मुट्ठियां, खुलती थी बंद होती थी असगर की मुट्ठियां। 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। हत्ता के अली असगर को प्यास नहीं थी, बल्कि अली असगर देख रहे थे। इससे पहले हजरत कासिम भी शहीद हो चुके, इससे पहले हजरत अली अकबर भी शहीद हो चुके, हजरत अब्बास अलमबरदार भी शहीद हो चुके। अब कोई शहीद होने के लिए नहीं बचा, तो मैं भी अपने बाबा के दीन के खातिर, अपने नाना के दीन के खातिर जामे शहादत नोश कर लेता हूँ। गोया प्यास का तो बहाना था, जामे शहादत नोश फरमाना था। हजरत अली असगर ने नबी के दीन के खातिर, उस 6 माह के बच्चे ने भी नबी के नाम के खातिर, नबी के दीन की आज़मत के खातिर हल्क पर तीर खाकर जामे शहादत को नोश फरमा लिया। सब पढ़ लीजिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रात तांता लग गया, एक के बाद में एक शहीद होते रहे, शुहादा का मजमा लगता गया। इमाम हुसैन तमाम की लाशाए मुबारक को उठा करके खैमों की तरफ लाते रहे। जब देखा अब कोई नहीं बचा, तो हजरत इमाम हसन, मौलाना हसन रज़ी अल्लाह तआला फाज़िल बरेलवी के बड़े भाई कहते हैं, साते आहो बका की बेकरारी आ गई, साते आहो बकाओ बेकरारी आ गई, सैयदे मजलूम की रन में सवारी आ गई, सैयदे मजलूम की रन में सवारी आ गई। साथ वाले भाई बेटे सब हो चुके शहीद, अब बेकसो तन्हा इमाम की बारी आ गई। हज़रात इमाम हुसैन ने अब इरादा फरमा लिया, इमाम हुसैन ने इरादा फरमा लिया कि मैं जंग में जाऊंगा। सारे लोग तो शहीद हो चुके। तवज्जो के साथ में इस बात को सुनिए। आप हज़रात ने बारहा इस मंजर को सुना होगा और अपनी आंखों से मुलाहिजा किया होगा, मगर हज़रात जब भी ये बातें होती हैं, जब भी ये जिक्र होता है, तो आंखें भीग जाती हैं, दिल लरस जाता है, दिल के अंदर याद इमाम हुसैन ताज़ा हो जाती है कि वाह रे इमाम हुसैन, तूने नबी के दीन के खातिर, नबी के दीन इस्लाम की अज़मत के खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। हज़रात इरादा फरमाया जंग में जाने का। बहुत सारी बातें, बहुत सारे वाक़यात हैं, मुख्तसर के साथ में मैं आपको बताने लगा हूँ। हज़रत इमाम हुसैन ने उस तबर्रुकात के संदूक को खोला, उसके अंदर से नबी पाक का मुबारक अमामा शरीफ निकाला, मिस्र का कुब्बा निकाला, हाथ के अंदर जुल्फ़कार हैदरी को लिया और हजरत इमाम हसन की पट्टी को पहना और तमाम की दुआएं लेकर के हजरत ज़ैनब से वादा करके हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को समझाकर और वसीयतनामे पेश करके तमाम बातों से इख्तियार फरमा करके अब आप रन में आ जाते हैं, मैदान जंग में आ जाते हैं। हज़रात क्या मंजर होगा, क्योंकि अब कोई और नहीं बल्कि जंगी मैदान के अंदर नबी का नवासा आ गया है, अली का बेटा आ गया है, अली का शहजादा आ गया है। उसके हाथ में जुल्फ़कार हैदरी लहरा रही है, सर के ऊपर नबी का अमामा चमक रहा है। गोया के हुसैन नहीं आ रहे, अली की तलवार आ रही है, नबी का जलाल आ रहा है, जामे शहादत का जज्बा आ रहा है। हज़रात इमाम हुसैन आ रहे हैं, यजीदियों से मुकाबला करते हैं, मैसरे की तरफ हमला करते हैं, मैसरे को उखाड़ कर फेंक देते हैं, मैमने की तरफ हमला करते हैं, मैमने की तीर मखरा करके रख देते हैं, कल्बे लश्कर के कल्ब के ऊपर हमला करते हैं। गोया के जिधर जाते हैं उस तरफ हंगामा बर्पा हो जाता है। अली के बेटे की तलवार की चमक नजर आ रही है। जब वो तलवार चलती थी, जब वो तलवार चलती थी तो ऐसा लगता था
हुसैन की तलवार नहीं चल रही बल्कि आसमान के अंदर बिजली गरज रही है। हुसैन की तलवार नहीं चल रही बल्कि सूरज अपनी रोशनी को जमीन पर फेंक रहा है। हुसैन की तलवार नहीं चल रही बल्कि दुआए इब्राहिम लोगों पर आ गई है। हुसैन की तलवार नहीं चल रही बल्कि नूह की कश्ती किनारे पर आ गई है। हुसैन की तलवार नहीं चल रही बल्कि हुस्ने यूसुफ जमीन पर आ गया है। हुसैन की तलवार नहीं चल रही, हालात ऐसा लगता था कि गज़ब इलाही जमीन पर आ गया है, कहर इलाही जमीन पर आ गया है। यजीदियों को मार रहे हैं, गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। यजीदी एक के बाद एक जमीन पर गिर रहे हैं। वक्त गुजरता रहा, वह यजीदी मरते रहे, वासिले जहन्नम होते रहे। शिमर शिमर परेशान है, इब्ने साद परेशान है। ये तलवार कैसे रुके, ये तलवार कैसे रुके? अगर ये तलवार चलती रहेगी तो हम मरते रहेंगे, वासिले जहन्नम होते रहेंगे। इस तलवार को कैसे रोका जाए? हज़रात, उनके पास में तलवार रोकना तो क्या था, वो सोच रहे थे कि तलवार कैसे रुके। अचानक वो तलवार रुक गई, अचानक वो तलवार रुक गई। अरे जो तलवार इमाम कासिम की शहादत से न रुकी हो, जो तलवार अब्बास अलमबरदार के कटे हुए बाजों से न रुकी हो, जो तलवार अली अकबर की जहानी को देखकर न रुकी हो, नन्हे अली असगर के लाशे को देखकर ना रुकी हो, वो तलवार रुक क्यों गई? मुअर्रिख लिखता है जो तलवार किसी खौफ व खतर से ना रुकी, वो तलवार इसलिए रुकी कि वक्त नमाज आ गया है। वक्त नमाज आ गया। मेरे इमाम जमीन तक पर तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, यजीदियों तुमको मालूम है आज दिन कौन सा है? नबी का नवासा जख्मों से चूर चूर लहू लोहान हो चुका, 72 जख्म जिस्म के ऊपर आ गए तो इब्ने साद आपके सीने पर सवार हो गया, आपको कत्ल करने का इरादा किया। आपने इरशाद फरमाया, तू मेरा कातिल नहीं है, तू मेरा कातिल नहीं है। अरे मेरा कातिल वो है जिसका जिस्म खिंजीर की तरह है, जिसके सीने पर रीछ की तरह बाल हैं, जिसकी मोटी मोटी आंखें हैं, जिसका रंग खिंजीर की तरह है। हज़रात गोया कि मेरे इमाम यजीद की तरफ इशारा फरमा रहे हैं, यजीद की तरफ इशारा फरमा रहे हैं। मेरे इमाम ने फरमाया, तू मेरा कातिल नहीं है। अरे मेरे नाना के कलमा पढ़ने वाले, मेरे नाना के उम्मती, जरा मुझे ये तो बता आज दिन कौन सा है? उसने कहा जुमे का दिन है। आपने फरमाया महीना कौन सा है? उसने कहा मुहर्रमुल हराम का महीना है। हज़रात आपने फरमाया देख आसमान का सूरज अपनी जगह बदलने लगा है। पूरी उम्मत मुस्लिमा वक्त नमाज के लिए नमाज जुमा के लिए अदा करने के लिए जा रही, वक्त नमाज आ गया है, मुझे भी नमाज पढ़ने दे। गोया कि वो पीछे हट गया। इमाम हुसैन नमाज अदा फरमा रहे हैं। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ए इमाम ये तो बताइए, जब आपको यजीदियों ने पीने के लिए पानी नहीं दिया, आपके नन्हे अली असगर के लिए पीने के लिए पानी नहीं दिया, हजरत अब्बास ने पानी नहीं पिया, तो वुजू के लिए पानी कहां से आया? वुजू के लिए पानी कहां से आया? इसलिए कि नमाज के लिए वुजू का होना जरूरी है। आज तो मुअर्रिखीन कहते हैं, फुक़हा किराम फरमाते हैं कि जब वुजू का पानी मौजूद ना हो तो उस वक्त में तयम्मुम का हुक्म है। तो मैंने अर्ज किया मौला की बारगाह में तयम्मुम भी किस तरह से किया जाए, क्योंकि तयम्मुम के लिए सूखी मिट्टी का होना जरूरी है। अरे करबला के मैदान में तो हर जगह आपकी औलाद का खून पड़ा है, कहीं पर आपके भाइयों का खून पड़ा है, कहीं पर आपके शहजादों का खून पड़ा है। आपने कैसे वुजू फरमाया? गोया के मुअर्रिख लिखता है और लिख करके कलम तोड़ लेता है, नमाजें बहुतों ने पढ़ी, वुजू बहुतों ने करे, तयम्मुम बहुतों ने करे, इबादतें बहुतों ने करी, मगर इमाम का नवासा, मेरे आका का नवासा, नबी ये पाक का शहजादा, उसकी नमाज भी निराली, उसका वुजू भी निराला, उसका तयम्मुम भी निराला। गोया के मेरे इमाम ने ना वुजू फरमाया ना तयम्मुम फरमाया, बल्कि चेहरे के खून को चेहरे पर मल लिया, हाथों के खून को हाथों पर मल लिया। मैंने पूछा, या इमाम आली मकाम, ये कौन सी नमाज है कि जिसके लिए खून से वुजू किया जा रहा है, जिसके लिए खून से तयम्मुम किया जा रहा है? तो किसी शायर ने कहा है, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, अरे नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, जिक्र शहदाए करबला, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। गोया कि नबी का नवासा अपने खून से वजू कर रहा है और आपने इरशाद फरमाया, यजीदियो तुम क्या समझते हो, तुमने मुझे जंग में हरा दिया, अरे तुमने मेरे बेटों को कत्ल किया, तुमने मेरे भाइयों को कत्ल किया, तुमने मेरे साथियों को कत्ल किया, गोया कि तुम मुझे भी कत्ल कर दोगे, मगर जमाना इस बात का गवाही देता रहेगा कि करबला के मैदान में इससे पहले तो ये कायदा होता था कि जो मर जाता था, जो कट जाता था, वो हार जाता था, जो मारता था, जो कातिल हुआ करता था, वो जीत जाता था। मगर हुसैन इस कायदे को बदल रहा है, हुसैन इस निजाम को बदल रहा है। आज के बाद में दुनिया कहेगी कि इमाम हुसैन के भाइयों को शहीद किया गया, इमाम के हुसैन